Good afternoon, my dear students. Today, we are going to discuss the History Chapter 5, Kingdoms, Kings, and Early Republics. So today, we are going to discuss the chapter Kingdoms, Kings, and Early Republic. In this chapter, we will discuss that how the different powerful people they become the rulers, and in this chapter we will also discuss about the Varna system and about the Janpada and Mahan Janpada. And except this, we will also discuss about the two Mahajanpada, that is the Magdha and the Vajji, in this chapter. So let's start this chapter. Our chapter is Kingdoms, Kings, and Early Republic. My dear students, in the Civics chapter 3, that is, what is government? I told you about the different types of the government. In that chapter, I told you about the democratic government, monarchy government, and dictatorship government. My dear student, as you are well aware that in the democratic government, we choose our representative, means we choose our rulers ourselves. And in the monarchy government, a king rule over a kingdom or a particular area. So in this chapter, we are going to discuss that how the different people or powerful people or men, how they become the rulers. If we discuss about the present scenario, we are living in the democratic country. In the democratic country, how we choose our rulers, how we choose our representative. We choose our representative or rulers through the vote. Means during the election time, your area is divided into the different wards or constituencies. According to that, you cast vote according to your favorite candidate, and the candidate who received the maximum votes, that person become your representative or the ruler. So this is the scenario of the present time, and according to this scenario, a ruler is just for the 5 years. But if we discuss about the ancient time, at that time, the different powerful men, they perform the different types of the ritual or sacrifices, and at that time, then they became the Raja or the king. I told you about the monarchy government. Monarchy means monarch or a king. So a king government, and when a powerful man ruled over, or a king ruled over a particular area, that is the kingdom of that person or that Raja or king. So our first concept in this chapter is how some men become rulers. कि कुछ पावरफुल जो व्यक्ति हैं वो रूलर्स, राजा जो हैं वो कैसे बनते थे, शासक कैसे बनते थे. तो कैसे बनते थे बेटा? मन became recognized as राजा, यानी कि जो पावरफुल जो आदमी होते थे, शक्तिशाली जो लोग होते थे, वो राजा कब रिकॉग्नाइज होते थे, यानी कि उनको राजा के रूप में कब मान्यता मिलती थी? बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस. जब वो बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, तब वो जाकर वो जो है राजा बनते थे. ऐसा ही एक बहुत बड़ा यज्ञ था जिसका नाम है बेटा आपका अश्वमेधा, और दी हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल. यानी कि जो अश्वमेधा है, जिसको आप हॉर्स सेक्रीफाइस के नाम से भी जानते हैं, इस तरह का एक रिचुअल था. बेटा जब आपका लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो लॉकडाउन स्टार्ट होने के साथ साथ दूरदर्शन पर आपका एक सीरियल दिखाया जाता था, रामायण. जब आपका रामायण दिखाया गया, तो रामायण में श्री रामचंद्र जी के बारे में दिखाया गया है. रामायण के खत्म होने के बाद आपको दूसरा सीरियल दिखाया गया, लेटर रामायण, जिसमें लव कुश के बारे में आपका दिखाया गया था, जो श्री रामचंद्र जी के पुत्र थे. तो जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बने, तो उनकी जो कीर्ति थी, उनकी जो ग्लोरी थी, वो बहुत अलग अलग जो रीजन्स थे, अलग अलग जो एरियाज थे, उसमें फैली हुई थी. यानी कि वो बड़े प्रतापी, बहुत पराक्रमी राजा बन गए थे, जैसे कि उन्होंने लंका के राजा रावण को हरा दिया था. जब उन्होंने
अयोध्या पर राज करना शुरू किया तो उनके राज्य में अयोध्या के जो लोग थे वो बहुत खुश थे। साथ ही साथ जो उनके मिनिस्टर्स थे उन्होंने बहुत समय गुजर जाने के बाद उनको एक सलाह दी कि वो अपने देश में कोई ऐसा सेक्रीफाइस कराएं, ऐसा यज्ञ कराएं जिससे जो उनकी कीर्ति है, उनकी जो प्रसिद्धि है, उनका जो सम्मान है, उनकी जो डिग्निटी है वो दूर दूर के एरिया में फैले। तो इसलिए उन्होंने जो है यज्ञ कराने की सोची। तो अपने छोटे भाई भरत के कहने पर उन्होंने जो है अश्वमेधा यज्ञ को, पहले वो राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे लेकिन राजसूय यज्ञ उनके लिए जो है ज्यादा बेनिफिशियल नहीं माना गया भरत के अकॉर्डिंग। तो भरत ने उनको जो है, उनके जो छोटे भाई भरत थे उन्होंने उनको सलाह दी कि वो अश्वमेध यज्ञ कराएं। तो भरत की सलाह मानकर दूसरे जो उसके मिनिस्टर थे, श्री रामचंद्र जी के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने अश्वमेधा यज्ञ को कराया। अब आपने देखा होगा बेटा उस अश्वमेध यज्ञ में क्या किया गया, बहुत से जो पंडित लोग थे, पृष्ठ जो लोग थे, ऋषि मुनि जो लोग उस समय थे, उनको बुलाया गया और यज्ञ जो है आपका शुरू कराया गया। ऐसे ही बड़े बड़े जो राजा थे उनको भी बुलाया गया और उनको भी उस यज्ञ में शामिल कराया गया। तो बड़े बड़े जो लोग थे वो उस यज्ञ में आए। उस यज्ञ में क्या हुआ, हॉर्स सेक्रीफाइस, यानी कि एक घोड़े को बुलाया गया। वो घोड़ा जो है सुसज्जित कराया गया, डेकोरेटेड कराया गया, उसको सजाया गया। उसके बाद उसके मस्तक के ऊपर, उसके सिर के ऊपर जो है एक वार्निंग लिखी गई कि ये जो घोड़ा है ये अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का है, कोई भी इसको पकड़ने का या रोकने का दुस्साहस ना करे। अगर कोई इसको पकड़ता है या रोकता है उसको श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और अगर वो उसको अपने राजा से और अपने राज्य से गुजरने देते हैं तो उनको श्री रामचंद्र जी की दास्ता को जो है मानना पड़ेगा। तो वो घोड़ा जहां से भी गया, जिस भी एरिया से गया, सभी राजा जो लोग थे उसके सामने नतमस्तक हो गए, यानी कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी की दास्ता को सहन कर लिया, उनकी दास्ता को मान लिया। और अंत में जब वो घोड़ा अयोध्या के पास ही लौटकर आ रहा था तो श्री रामचंद्र जी के जो पुत्र थे लव कुश, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने की ठान ली, यानी कि वो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहते थे। ये तो बात थी एक सीरियल की। लेकिन यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अश्वमेधा यज्ञ में क्या किया जाता है, हॉर्स सैक्रिफाइस होता है, एक घोड़ा होता है, उसको जो है फ्रीली छोड़ दिया जाता है। जहां जहां वो जाता है, वहां जहां जहां से वो गुजरता है, पास होता है, वहां वहां जो है उस राजा का जो है राज्य जो है वो स्थापित हो जाता है और दूसरे जो राजा है उस राजा की दास्ता को जो है मान लेते हैं। तो ये होता है आपका अश्वमेधा। तो क्या होता है बेटा अश्वमेधा, a horse was let loose to wander freely by a राजा, यानी कि इसमें क्या होता है कि राजा के द्वारा जो है आपका जो है एक घोड़ा जो है वो खुला छोड़ दिया जाता है, लूज छोड़ दिया जाता है, और वो क्या करता है, वॉन्डर, घूमता है। इफ द हॉर्स वॉन्डर इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजा, और अगर वो घोड़ा घूमता हुआ किसी दूसरे राजा के किंगडम में, राज्य में चला जाता है, एंड दे स्टॉप इट, और वो उसको रोक लेते हैं, दे हैड टू फाइट विद द राजा, उनको राजा के साथ जो है युद्ध करना पड़ता है। हु परफॉर्म दिस रिचुअल, जिस राजा ने इस रिचुअल को किया है। पहली कंडीशन क्या हुई बेटा कि अगर कोई घोड़े को रोकेगा तो उसको राजा के साथ युद्ध करना होगा, और अगर वो राजा को हरा देगा तो वो उस राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या बेटा, इफ दे अलाउड इट द हॉर्स टू पास, और अगर वो घोड़े को अपने राज्य से गुजर जाने देते हैं, इट मेंट दैट दे एक्सेप्टेड द राजा, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने उस राजा की दास्ता को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस, जो इस यज्ञ को करा रहा है, वो स्ट्रोंगर देन, यानी कि वो जो राजा है जो इस यज्ञ को करा रहा है वो उन राजाओं से ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से जो है आपका अश्वमेधा यज्ञ जो है वो किया जाता था, और इस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो पावरफुल राजा बन जाता था। तो कैसे बनता था बेटा, बाय अश्वमेधा सैक्रिफाइस। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल, यानी कि ये जो रिचुअल है अश्वमेधा जो यज्ञ है, इसका जो सेंट्रल फिगर होता था, इसका जो केंद्र बिंदु होता था वो राजा होता था। यानी कि
वो राजा के लिए ही ये यज्ञ किया जाता था, राजा को ही इससे प्रसिद्धि मिलती थी, राजा ही इसमें जो है सबसे शक्तिशाली कंसीडर किया जाता था। यानी कि सारे के सारे एस्पेक्ट जो हैं वो राजा के चारों ओर ही घूम रहे हैं, वो उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। हिज वाइव्स एंड सन, राजा की जो पत्नियां होती थी और राजा के जो पुत्र होते थे, ऑल्सो हैड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल, वो भी जो है छोटे छोटे जो रिचुअल जो है वो करते थे, लेकिन सबसे बड़ा जो रिचुअल है वो राजा ही करता था। स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट परफॉर्म दीज रिचुअल, यानी कि इस तरह के जो रिचुअल हैं वो जो है स्पेशल ट्रेंड प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स ब्राह्मण, पुजारी, आप पुजारी भी कह सकते हैं, ब्राह्मण भी कह सकते हैं, यहाँ पे मतलब है ब्राह्मण का, यानी कि जो स्पेशल प्रशिक्षित ब्राह्मण जो लोग होते थे वो इस प्रकार के रिचुअल्स को, इस प्रकार के सेक्रीफाइस वर्क को करते थे, इस प्रकार की परंपराओं को, इस प्रकार के रीति रिवाजों को अंजाम देते थे। इसके अतिरिक्त जब ये आपका रिचुअल किया जाता था, इसमें स्पेशल ट्रेंड प्रीस्ट आपके होते थे जो ये कार्य को करते थे, साथ ही साथ जो राजा की पत्नियां होती थी उसके जो पुत्र होते थे वो भी जो है छोटे मोटे जो है अनुष्ठान करते रहते थे। इसके अतिरिक्त द अदर राजा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये अश्वमेध यज्ञ किया जाता था तो दूर दूर से जो अलग अलग राज्यों के, अलग अलग किंगडम के जो राजा हैं वो भी इनवाइट किए जाते थे। तो जो दूसरे राजा थे, द अदर राजास वर सिंपली spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice। तो दूसरे जो राजा होते थे वो सिंपली रूप से, साधारण रूप से स्पेक्टेटर होते थे, केवल देखने वाले होते थे कि राजा जो है इस अनुष्ठान को, इस सेक्रीफाइस को करा रहा है, और उनका कार्य केवल इस धार्मिक कृत्य को, इस धार्मिक कर्म को देखना होता था। और प्रीस्ट जो है परफॉर्म द रिचुअल, ज्यादातर जो प्रीस्ट जो कार्य है वो इस सेक्रीफाइस वर्क को करते थे, इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। और जब ये कार्य किया जाता था तो राजा के ऊपर जो है स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग में स्केटर, छिड़काव करना, छिड़कना, वो राजा के ऊपर सैक्रेड, होली, पवित्र वाटर, पानी, पवित्र पानी जो है वो उसके ऊपर जो है छिड़कते थे। और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे लाइक द विश और वैश्य वर ऑल्सो इन्वाइटेड, इनमें विश और वैश्य जो लोग हैं, साधारण जो लोग हैं, उनको भी जो है इनवाइट किया जाता था। ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट, जो राजा के लिए जो है गिफ्ट लेकर आते थे। हाउएवर सम पीपल हु वर रिगार्डेड एज शूद्राज, हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो आपके जो है शूद्राज में कंसीडर किए जाते थे। वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल, उनको जो है बहुत से रिचुअल से, बहुत सी परंपराओं से, बहुत से धार्मिक कृत्यों से जो है दूर रखा जाता था, यानी कि वो लोग जो है इसमें इनवाइट नहीं किए जाते थे। शूद्राज जो लोग होते थे उनको जो है किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में, मंदिरों में प्रवेश करने के लिए उनको मनाही होती थी, और उनका उस समय में जो रेजिडेंस होता था, जो उनका निवास स्थान होता था, वो भी गांव से बाहर होता था, यानी कि वो किसी के साथ भी इंटरमिंगल नहीं हो सकते थे, किसी के साथ नहीं रह सकते थे। अब बेटा आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आए होंगे, सर विश और वैश्य क्या होता है या शूद्राज क्या होता है? सो हैव ए लुक माय डियर हियर। उस टाइम में क्या था बेटा, आपका वर्णा सिस्टम था। वर्णा सिस्टम क्या था? द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप कॉल्ड वर्णास। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो प्रीस्ट लोग थे, प्रीस्ट कौन होते थे बेटा? कौन होते थे? ब्राह्मण लोग होते थे। सिया कौन होते थे? ब्राह्मण लोग होते थे। तो जो प्रीस्ट लोग जो होते थे वो ब्राह्मण लोग होते थे। उन्होंने क्या किया, समाज के व्यक्तियों को 4 ग्रुप में, 4 समूह में बांट दिया, जिसको बाद में जो है वर्ण के नाम से जाने जाने लगा, यानी कि वर्णा के नाम से जाने जाने लगा। अब बेटा मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वर्ण सिस्टम को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है, अनिवार्य है। बड़े ध्यान से सुनना है आपने मेरे को। इन द लास्ट चैप्टर द हड़प्पन सिटीज we discussed about the prosperity of Harappan civilization and the different causes of devastation and damage of the Harappan cities. As I told you, my dear, the Harappan civilization, it was prosperous approximately 4700 BC and it was damaged or devastated approximately 3900 BC. So after the 3900 BC, approximately
Before 3500 year ago or 3500 BC, many people, those who belong to the Central Asia, those who were known as Aryans, arrived in India. यानी कि आज से तकरीबन 3500 साल पहले जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, जिनको आर्यन के नाम से जाना जाता था, वो जो लोग हैं भारत देश में आए एंड दे रिजाइडेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, और वो इंडस रिवर बैंक के ऊपर जो है उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, यानी कि वो वहां पे रहने लगे। सो जो आपके आर्यन जो लोग होते थे, दे वर द लिटरेट और सिविलाइज रेस पीपल, यानी कि वो पढ़े लिखे या सभ्य लोग जो हैं वो होते थे। एंड व्हेन द आर्यन केम इन इंडिया दे कंपोज द वेदास। जो वो आर्यन जो लोग हैं जब भारत देश में आए, हमारे यहाँ पे आए, इंडस रिवर के रीजन में आए, तो उन्होंने जो है वेदों को लिखना शुरू किया। अब आप कहेंगे सर वेद क्या होते हैं? वेद का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें बेटा, उसका लिटरल मीनिंग आपका होता है नॉलेज। वेद का लिटरल मीनिंग क्या होता है बेटा? नॉलेज, ज्ञान। यानी कि वेदों का जो मतलब होता है ज्ञान होता है, और यू कैन से दैट वेदास आर द ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ द आर्यंस। यानी कि जो वेदास जो होते थे ज्ञान का खजाना होते थे, जिसमें जो है आर्यन लोगों ने बुद्धिमत्ता की बातें लिखी हुई है, विजडम की बातें लिखी हुई। तो उन्होंने जो है वेद लिखने शुरू किए। सबसे पहला जो वेद उन्होंने लिखा दैट वाज द ऋग्वेदा। सबसे पहला कौन सा वेद लिखा बेटा उन्होंने? प्रीधि, कौन सा वेद लिखा? ऋग्वेदा। कौन सा वेद लिखा बेटा? ऋग्वेदा। गुड। पहला जो वेद है वो उन्होंने ऋग्वेदा लिखा। तो ऋग्वेदा जो उन्होंने लिखा, ऋग्वेदा वाज कंपोज अप्रोक्सीमेटली 3500 बीसी। ऋग्वेदा आज से तकरीबन 3500 साल पहले लिखा गया है बेटा। कब लिखा गया है आपका? 3500 साल पहले आपका ऋग्वेदा लिखा गया है। तो जब वेद लिखे गए बेटा, उसको हिस्ट्री में वैदिक एज के नाम से भी जाना जाता है। और जो वैदिक एज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक आपकी अर्ली वैदिक एज और दूसरी आपकी लेटर वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज है बेटा, उसका टाइम पीरियड, उसकी टाइमलाइन हम मानते हैं 1500 बीसी टू 1000 बीसी। अर्ली वैदिक एज क्या मानते हैं बेटा हम? 1500 बीसी टू 100 बीसी। क्या मानते हैं योगिता? 1500 बीसी टू 100 बीसी। और जो लेटर वैदिक एज है वो हम मानते हैं 1000 बीसी टू 600 बीसी। तो इस प्रकार से हमने वेद जो हमारे कंपोज हुए उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में आपका एक ही वेद लिखा गया है बेटा, और वो है आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद लिखा गया है बेटा? आपका ऋग्वेद। और लेटर वैदिक में एज में आपके 3 वेद लिखे गए हैं बेटा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 3 वेद आपके बाद में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से हिंदू समाज में टोटल 4 वेद हैं बेटा। हिंदू समाज में टोटल 4 वेद हैं, वो हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब आर्यन जो लोग हैं भारत देश में आए, तो भारत देश में आके इंडस रिवर पे जब वो उन्होंने रिजाइड किया, वहां पे रहने लगे, तो उन्होंने ऋग्वेदा बनाया। उसके बाद धीरे धीरे वो जो है आपके जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आगे की ओर फैलने लगे, और धीरे धीरे वो जो है गंगा रिवर वैली तक भी जो है आपके आ गए, यानी कि गंगा के तटों तक भी वो आ गए। तो गंगा के स्थान पर जब उन्होंने रहना शुरू कर दिया, तो वहां पे उन्होंने 3 वेद लिखे बेटा। वो थे आपके सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। तो 3 वेद आपके बाद में लिखे गए। तो अब आप कहेंगे सर वेदों का जो है वर्ण सिस्टम से क्या संबंध है? एक्चुअली बेटा जो वेद लिखे गए हैं, हर एक वेद में जो है अलग अलग बातें जो है वो लिखी गई हैं। जैसे कि ऋग्वेद है बेटा, ऋग्वेद जो है आपका 3500 साल पुराना वेद है, जिसमें जो है हिम्स, प्रेयर लिखी गई हैं। और ये जो प्रेयर्स हैं ये सेजिस के द्वारा, ऋषियों के द्वारा लिखी गई हैं। यानी कि इसमें जो है ऋषियों की कॉन्वर्सेशन है, और वो कॉन्वर्सेशन किसके साथ है? या तो उनके डिसिपल्स, उनके शिष्यों के साथ है, या नेचर, या उन्होंने नेचर से जो है वार्तालाप करते हुए उनको दिखाया गया है। यानी कि पर्सनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है कि हाँ
भाई प्रकृति में भी जान होती है, ये चीज जो है आर्यन लोगों ने पहले ही जान ली। तो बेटा 4 वेद आपके लिखे गए और वर्ण जो सिस्टम है वो ऋग्वेद में लिखा गया। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत जो देश है उसको जो है आर्यवर्त भी के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो आर्यवर्त जो नाम है, वो जो नाम है वो आपका जो है आर्यन लोगों ने ही दिया था। जब आर्यन लोग गंगा नदी के किनारे पर तकरीबन आपके जो है 1000 बीसी टू 600 बीसी के आसपास वहां पे रहने लगे थे, तो उस टाइम इस रीजन को आर्यवर्त के नाम से जाना जाने लगा। तो हम बात कर रहे हैं वर्णाज की। तो बेटा जो ऋग्वेद है उसमें आपका वर्णों के बारे में जो है जिक्र किया गया है, और ऋग्वेद में आपके जो वर्ण बताए गए हैं वो 4 वर्ण आपके बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। 4 वर्ण आपके बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्र। जो आपके ये 4 वेद बताए गए हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्णा हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। यानी कि 4 के 4 जो वर्ण हैं, इन 4 के 4 वर्ण के लोगों को अलग अलग जो है कार्य जो है वो करना होता है। यानी कि उनके कामों के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर आपका समाज जो है वो 4 वर्ण में डिवाइड कर दिया। और उसमें सबसे ऊपर, सबसे सुपीरियर जो माना जाने लगा, सबसे जो श्रेष्ठ माना जाता था, वो कौन होता था बेटा? ब्राह्मण। कौन होते थे बेटा? वो ब्राह्मण लोग होते थे। द फर्स्ट वर्ना वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मण। ब्राह्मण जो लोग हैं उनको जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाने लगा। और ब्राह्मण का क्या काम था? Brahmins were expected to study the Vedas, perform sacrifices and receive gift। यानी कि ब्राह्मणों का जो कार्य बताया गया है वो क्या बताया गया है बेटा? कि ब्राह्मणों का जो कार्य था वेदों को पढ़ना, परफॉर्म सैक्रिफाइस, पूजा पाठ कराना, धार्मिक अनुष्ठान कराना, जैसे कि अश्वमेधा यज्ञ है, या घरों में जो पूजा की जाती है, जो सैक्रिफाइस, जो रिचुअल किए जाते हैं, या अगर किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, या आप पूर्णमासी की कथा कहलवाते हैं, तो वो आपका एक सैक्रिफाइस है, आपका एक रिचुअल है आपका। जैसे हिंदू धर्म में आपका जो है शादी ब्याह के जो फंक्शंस हैं, वो जो वहाँ पे रिचुअल किया जाता है, वो आपके सारे के सारे धार्मिक अनुष्ठान जो है, ये सारे के सारे धार्मिक कार्य जो है ब्राह्मणों की सहायता से किए जाते हैं। तो वो क्या काम करते थे बेटा? परफॉर्म सैक्रिफाइस, वो धार्मिक कार्य करते थे। एंड रिसीव गिफ्ट, और इनके बदले में उनको जो है गिफ्ट दिए जाते थे, दान दक्षिणा दी जाती थी। यानी कि जब भी वो कोई धार्मिक कार्य करते थे तो बदले में उनको जो है दान दक्षिणा दी जाती थी। तो सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ कौन से लोग थे बेटा? ब्राह्मण लोग थे। 3 काम थे उनके: वेदों को पढ़ना, धार्मिक कार्य कराना और दान दक्षिणा लेना। यस योगिता, 3 वर्क थे उनके। गुड। आफ्टर दैट इन द सेकंड प्लेस वर दी रूलर्स। दूसरे स्थान पे आपके आते हैं रूलर्स। दे वर नोन एज दी अक्षत्रियास। उनको जो है अक्षत्रिय के नाम से जानते हैं। अक्षत्रिय जो शब्द है अक्षति से निकला है, यानी कि जो अक्षति खा लेते थे, यानी कि जो युद्धों में भी जो है घायल हो जाते थे, वुंडेड हो जाते थे। तो वो जो लोग हैं, यानी कि जो युद्धों में युद्ध लड़ते थे, दे फाइट दी बैटल्स। यानी कि क्षत्रिय का क्या काम होता है? युद्धों को लड़ना, शासन करना एंड प्रोटेक्ट पीपल, और लोगों की रक्षा करना। तो क्षत्रिय का जो काम था वो रूलर्स होते थे, वो युद्धों को लड़ते थे और अपने राज्य में जितने भी लोग होते थे उनकी प्रोटेक्शन करते थे, उनकी रक्षा दूसरे दूसरे राजाओं से करते थे। थर्ड वर्दी विश और वैश्यास। थर्ड जो होते थे विश या वैश्य, उनको बोला जाता था। विश और वैश्य, वैश्य का मतलब होता है बेटा जो बिजनेस करते हैं, पैसे से संबंधित जो लोग होते हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर। विश कैटेगरी में कौन कौन आते थे बेटा? उसमें फार्मर भी हो सकते थे, हर्डर्स भी हो सकते थे, ट्रेडर्स भी हो सकते थे, क्राफ्ट पर्सन भी हो सकते थे। अब आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व है, हर्डर एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व है, ट्रेडर बिजनेसमैन है बेटा। तो उस टाइम में जो बिजनेस का जो काम करते थे, ट्रेड का जो काम करते थे, उनको वैश्य के नाम से जो है जाना जाता था। यानी कि वो एक तरह से बिजनेसमैन होते थे, किसान होते थे, या पशुओं को रखने वाले होते थे। यानी कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसमें वो इन्वॉल्व होते थे। और
लास्ट स्टेज है बेटा आपकी वर्दी शूद्राज। चौथे स्थान पर आपका जो है सबसे निम्न स्थान पर शूद्राज को रखा गया। शूद्र हु हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप। इनका क्या काम होता था कि ऊपर जो मैंने ये तीन वर्ण आपको बताए हैं, ब्राह्मण, अक्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना जो है शूद्रों का काम होता था। यानी कि ये इन तीनों की सेवा करते थे एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल। और ये किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते थे, किसी भी मंदिर में जाने की इनको अनुमति नहीं थी, और इनका जो निवास स्थान होता था वो तकरीबन जो है गांवों से बाहर की तरफ होता था। यानी कि शूद्र ऐसे लोग होते तो जो मीनियल वर्क, यानी कि जो माइनर वर्क होते हैं, जैसे कि साफ सफाई है, गलियों की साफ सफाई करना, नालियों की साफ सफाई करना, या इन राजाओं की सेवा करना। ऋग्वेद में शूद्र को जो है दास कह के भी बुलाया गया है बेटा। यानी कि ये एक तरह के दास होते थे। आपने देखा होगा पहले जो राजा लोग होते थे उनके बहुत से दास दासियां होते थे, तो वो कौन से लोग होते थे? शूद्र होते थे। यानी कि उनको केवल इन तीन वर्णों की सेवा करनी होती थी, उनको किसी प्रकार की कोई प्रिविलेज नहीं दी जाती थी। तो दीज वर द फोर वर्णास दैट वर डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा। सो ऑफन women were also grouped with the शूद्राज। कई बार जो है जो औरतें होती थी उनको भी जो है शूद्राज के ग्रुप में कंसीडर किया जाता था। कैसे? बोथ वीमेन एंड शूद्राज वर नॉट अलाउड टू स्टडी दी वेदास। क्योंकि ना तो औरतों को ही और ना ही शूद्रों को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी। यानी कि वेद कौन पढ़ सकता था? केवल जो है ब्राह्मण लोगों का वो कार्य होता था, अक्षत्रिय लोग कर सकते थे। इवन दो कुछ हद तक जो है वैश्य जो लोग थे वो भी पढ़ सकते थे, लेकिन शूद्र और औरतें जो है वेदों को नहीं पढ़ सकती थी। सो ऑन द बेस ऑफ दिस the priest also said that these group were decided on the basis of birth। यानी कि जो ब्राह्मण जो लोग थे जिन्होंने ये वर्ण जो आपके जो है डिवाइड किए थे, उनका ये भी मानना था कि इनको जो है ये ऐसे डिसाइड किए गए, इनको जन्म के आधार पर ये चार वर्ण आपके बांटे गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम ए ब्राह्मण। यानी कि अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण होते थे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो संतान है वो भी ब्राह्मण ही होगी, और अगर किसी के माता पिता जो अक्षत्रिय होते थे तो ऑटोमेटिकली उनकी संतान भी जो है अक्षत्रिय ही होगी। लेटर दे क्लासिफाई सम पीपल एज अनटचेबल। तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल करार दे दिया, यानी कि जिनको छूना मना था, जिसको एस्पिस बोलते हैं, यानी कि हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते। वो थे बेटा आपके शूद्राज, जो आपके मीनियल वर्क में जो है आपके इन्वॉल्व होते थे। शूद्राज को पोल्यूटेड पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। शूद्राज को पोल्यूटेड पर्सन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो अनटचेबल होते थे, शूद्र जो लोग होते थे वो कौन होते थे? उनमें जो बहुत ही निम्न कैटेगरी का कार्य करते थे, निम्न श्रेणी का कार्य करते थे, उनको अनटचेबल कहा गया था। अब निम्न कैटेगरी का क्या कार्य है बेटा? जैसे कि नालियों की सफाई करना और जो मल वगैरह उठाते थे वो कार्य करना, या द पीपल हु वर एंगेज इन दी बरियल एंड क्रेमेशन एक्टिविटी। यानी कि ऐसे लोग जो बरियल का मतलब होता है बेटा कब्र। आपने देखा होगा कि अलग अलग धर्मों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अलग अलग प्रकार से उनका जो है आखिरी संस्कार किया जाता है। जैसे कि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी को लें या क्रिश्चियन कम्युनिटी को लें, उनमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के पश्चात जो है उनको जो है भूमि के अंदर गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है। तो जब उनको भूमि के अंदर दफना दिया जाता है तो ऐसी साइट्स को हम बोलते हैं बरियल, यानी कि उनको भूमि के अंदर दबा दिया गया है। वो तो होती थी बेटा आपकी बरियल। दूसरा आपका होता है बेटा क्रेमेशन। जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज में जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हम उसका जब अंतिम संस्कार करते हैं तो हम उसके शरीर को अग्नि देते हैं, यानी कि जला देते हैं, और ऐसा मानते हैं कि वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो जब हम
किसी मृत व्यक्ति के शरीर को जलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रेमेशन। तो पुराने समाज में जब ये कार्य आपका किया जाता था तो उन लोगों को जो है अनटचेबल और पोल्यूटेड व्यक्ति समझा जाता था, यानी कि कोई भी उनके संपर्क में नहीं रहता था। तो ऐसे लोग जो हैं वो अनपोल्यूटेड आपके होते थे, यानी कि जो शवों को देखते थे, कब्रों के पास रहते थे, या जो आपके क्रेमेशन का काम करते थे, चिता में आग लगाने का काम करते थे, उनको जो है अनटचेबल कैटेगरी में आपका रखा गया था। सो दीज वर दी 4 डिफरेंट वर्नास। अब आपने जैसे यहाँ पे देखा कि बर्थ के आधार पर ये होता है, तो कई बार ये जरूरी नहीं है कि बेटा कि बर्थ के आधार पर जब भी आपका कहीं पे जन्म हो रहा है तो ऐसे आप जो है एक शक्तिशाली लोग ही होंगे, या आपके जो गुण हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं वो श्रेष्ठ ही होंगी। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर ब्राह्मण के घर में जो है कोई व्यक्ति पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है तो विद्वान ही होगा, या क्षत्रिय के घर में अगर कोई पैदा होगा तो वो वॉरियर ही होगा, योद्धा ही होगा। ऐसा नहीं होता है बेटा, वो क्वालिटीज होती है। तो इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन राइज हुए, बहुत से लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट भी किया, बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, जिनके बारे में हम 7th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। Today we discuss how the different powerful men become the rulers and what are the different varnas. So how the different people became the rulers. They became the rulers by doing the Ashwamedha sacrifice. Or what were the different varnas? There were the 4 varnas that were described in the Rig Veda. These were the Brahman, Kshatriya, वैश्य एंड शूद्राज। और शूद्राज में कुछ ऐसे लोग थे जिनको अनटचेबल कहा जाता था, पोल्यूटेड व्यक्ति कहा जाता था, जो मीनियल वर्क में आपके जो है इन्वॉल्व होते थे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव 4 minutes. If you want to ask anything, if any question is in your mind, you can convey that question beta. I will sort out your problem. So please raise hand who want to ask any question. Okay beta, thank you. Have a nice day. This is enough for today. Further we will discuss later on beta. If you have still any query, any question that arrive in your mind, please WhatsApp me. Thank you beta. Have a nice day. Stay healthy, stay safe. God bless you all. Bye, sir. Okay beta, okay.